ट्रस्ट मी आधे से ज्यादा तो मुंह धो के आए होते हैं जिन्होंने कुछ तैयारी नहीं की होती, ठीक है। और जो करेक्ट कोचिंग करेक्ट। इंस्टीट्यूट में जा रहे होते हैं बच्चे, मुझे पता है मेरे साथ के बच्चे थे ना होमवर्क करते थे ना मॉक्स देते थे। तुम्हारा उनसे कंपटीशन है ही ब्रो। तुम्हारा कंपटीशन उन बच्चों से जिन्होंने 30+ मॉक्स दिए हैं, जिनकी स्ट्रैटेजी इन प्लेस है, और वो है ही बहुत कम बच्चे। सो इफ यू जस्ट हैव अ राइट स्ट्रैटेजी, तुमने मॉक्स दिए हुए हैं, तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, और उन्हें अच्छे से एनालाइज किया है ना, तो तुम्हारा कुछ ना कुछ डिसेंट कॉलेज में हो ही जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। 24 क्वेश्चन आते हैं VRC में, विच इज इंग्लिश, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इफ यू डू 8 क्वेश्चंस, यू इन द टॉप 10 percentile. Only 8 out of 24. Then the next section is LRDI or mental ability. LRDI is logical reasoning and data interpretation. उसमें 20 questions में से if you do 5, you are again in the top 10 percentile. Next and the last section is quants, which is mathematics. उसमें 22 questions आते हैं, उसमें भी तुम 5 to 6 questions कर लोगे in the top 10 percentile. If you have 90, 90, 90, top 10 percentile in all of them, right? So automatically your aggregate score is going to be somewhere around a 98. Okay, so hey everyone, this is Manish and I welcome you all to my YouTube channel, The Insights Room. तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो है ऐश्वर्या एंड इन्होंने रिसेंटली IIM निकाला है। सो इससे पहले क्या है कि ये 2023 में बीटेक पास आउट है चितकारा यूनिवर्सिटी से। सो आज हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इन्होंने मतलब लाइक जब इनके दोस्त प्लेसमेंट्स के लिए जा रहे थे तो क्यों लाइक IIM की तरफ जाने की सोची एंड कैट प्रिपेयर की। तो ज़्यादा देर ना करते हुए लाइक चलते हैं ऐश्वर्या के इंट्रोडक्शन के साथ। ओके, सो हाय ऐश्वर्या। Hi Manish. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्रैकिंग द Thank आई। you. ओके, सो आपके इंट्रोडक्शन के साथ चल सकते हैं? Sure. So, like numerous lakhs of kids in India, I'm also an engineer. And I've done my engineering, as I said, from Chitkara University. So, it's a private university. And I graduated in July 2023. I sat for CAT in November and I was able to crack it in my first attempt. And while I was preparing for CAT, I was also doing an internship simultaneously. So, I wasn't completely going for a gap year. Although internship does not count for work experience, I must tell your viewers. So, it's more of a CV building thing, and just in case if CAT did not work out, it was a backup plan that I'll just go for a job offer. Because I was doing an internship, it was easier to get into a job because it wasn't a gap. Although I think in IIMs it's better if you have some work experience, but less than 6 months of work experience doesn't get you much marks. So I took that gamble and luckily it paid off. ओके, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है लाइक हाउ यू आर फीलिंग नाउ आफ्टर क्रैकिंग कैट एंड लाइक गेटिंग सेलेक्टेड एट IIM? Yeah, it is great. I'm grateful, first of all, I would say, because once you start giving exams, na be it any competitive exam, you know a lot of it is luck as well. मैं literally यहाँ पे बैठ के I can pretend to be a demigod कि it was a very tough thing और मैंने बहुत निकाल लिया, I'm some kind of a superhero or something, but that's not entirely true, especially when it comes to CAT, because a lot of things are completely out of your control. First of all, जो composite score बनता है, जो cut off होती है finally, that is not just based on our CAT score, right? That is based upon your 10th marks or +2 marks, and not exactly your marks as well. जितने बच्चों ने अप्लाई किया है ना, तो उनके जो टॉप 10% बच्चे होते हैं, उनके कितने हैं बोर्ड्स में, उसका एवरेज निकलता है और उस हिसाब से कॉम्प्लीट स्कोर डिसाइड होता है। तो उस साल किस तरह के बच्चे बैठ रहे हैं वो आपके कंट्रोल से बाहर है। जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपका पैनल कौन सा है, क्योंकि कुछ पैनल्स डिफिकल्ट होते हैं, कुछ आसान होते हैं, और कौन से टाइम पे जा रहे हो। समटाइम्स क्या होता है कि जब एंड पे जाते हो ना, जब बिल्कुल डे खत्म होने वाला होता है इंटरव्यूज का, तो पैनल ना इरिटेट हो जाते हैं सुबह से इंटरव्यू ले लेके, तो दे गेट वेरी इची विद यू एंड दे गेट वेरी एजिटेटेड, तो वो कम मार्क्स देते हैं। और कुछ पैनल्स होते हैं तो सिर्फ जीके पूछते हैं, कुछ पैनल्स होते हैं तो सिर्फ बैचलर्स के बारे में पूछते हैं। अब मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कभी भी बैचलर्स नहीं था, आई वॉज नॉट वेरी गुड। अब कोडिंग एक डिफरेंट चीज़ होती है, और तुम्हें थ्योरेटिकली पता हो, जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं 4 साल में, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो मैं लकीली पैनल्स ऐसे नहीं थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा बैचलर्स का पूछा हो, जबकि बाकी कुछ ऐसे पैनल्स थे। तो इट्स अगेन अ लक गेम, ठीक है। तो truthfully, it's a mix of hard work as well as luck. I'm not trying to put off any of your viewers. It's completely worthwhile to go and give CAT. But let's be honest, चाहे JEE हो, चाहे CAT हो, चाहे UPSC हो, कुछ चीज़ें आपके हाथ से बाहर होती हैं और लक पे भी होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील a lot of gratefulness कि चलो ठीक है, हो गया, luck shined upon me.
And then coming from a private university, so I know like a lakhs of engineers are there. और जो IIT NICT से नहीं होते उनकी कुछ खास इज्जत होती नहीं है मार्केट में. So there's a sudden increase in my respectability in the society when it comes from my peers, from my relatives, even from my friends. And I believe I'm taking it all in, trying कि मेरे सर पे ना लगे ये सब हवा. And I try to keep myself grounded. And yes, I'm excited about the future. That's it. Okay, you are from coding background, so can you elaborate like why did you choose like to go and prepare for CAT like while your parents were getting high packages that time? Right. So thing is, our engineers में ना काफी सारी branches होती हैं engineering में, mechanical, electrical, civil and coding. सबको बताऊंगी. बट जब फाइनल प्लेसमेंट्स होती है ना तो सब कोडिंग के लिए बैठे होते हैं. मैकेनिकल का बच्चा भी कोडिंग के लिए बैठा है, इलेक्ट्रिकल का भी, सिविल का भी. सो व्हाट इज द थिंग इज कि कोडिंग इज द न्यू जेई. ठीक है. सो एवरीबॉडी वांट्स टू गो इनटू कोडिंग बिकॉज़ इट्स द नेक्स्ट हॉट थिंग. तुम्हें लगता है कि बहुत हाई पैकेजेस मिलेंगे. सो व्हाट वाज हैपनिंग वाज कि हाँ, काफी बच्चों को हाई पैकेजेस मिल भी रहे थे. अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स वेंट टू अडोबी, Amazon एज वेल. बट टू बी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ, आई वॉज नॉट दैट पर्सन जिसको फैंग में मिलने वाली एडमिशन, बिकॉज आई वाज जस्ट नॉट दैट पैशनेट अबाउट कोडिंग. आई वाज ओके विद इट, आई वाज डूइंग इट, आई वाज हैप्पी डूइंग इट. बट टू बी वेरी फ्रैंक, आई वाज जस्ट एन एवरेज किड, एवरेज इंजीनियर. मुझे पता कि फैन नहीं मिलने वाला. एंड टू बी ट्रूथफुल, कौन चाहता है लाइफ में टू बी एवरेज? यू कुड डू बेटर, राइट? सो आई स्टार्टेड वंडरिंग अपॉन कि मेरे स्ट्रॉन्ग सूट्स क्या है. बिकॉज मैथ्स पूछते हैं कैट में, LRDI पूछते हैं, इंग्लिश पूछते हैं, राइट? तो 10th में मैंने NTSC क्रैक किया था फ्रॉम पंजाब. ठीक है. और मैंने KVPY भी दिया था +2 में. मैंने कॉलेज में NCAT जैसे एप्टीट्यूड एग्जाम्स निकाले हैं. तो आई वाज काइंड ऑफ नोइंग कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है ना वो ये है कि मैं एप्टीट्यूड दे सकती हूँ अच्छे से. तो क्योंकि मैं एप्टीट्यूड आराम से दे सकती हूँ तो आई डिसाइडेड कि लेट्स गो फॉर कैट. सो थिंग इज, a lot of people, जो तुम देखोगे, तुम लोग न्यूज़पेपर से पढ़ते हो कि lot of people are getting high packages. That is all true. But that is a very small fraction of the coding engineers, and especially right now, the market is in complete recession. Projects है नहीं market में यार, students hire नहीं हो रहे हैं. तुम news पढ़ के देख लो, even the IIT kids are not getting placed, right? So it's better कि why be average? Because if you're average, तो market recession सबसे पहले तुम hit होने वाले हो, right? So at least build yourself into something that you're good at. तो फिर मैंने रियलाइज किया कि एप्टीट्यूड तो मेरे में सही है ही, एंड इंग्लिश इज ऑल्सो समथिंग ऑफ माई स्ट्रॉन्ग सूट. बिकॉज बचपन से यार आई एम द काइंड ऑफ किड जो ना लाइब्रेरी में जाता है rather than going to nice house in summer vacations. I love reading Agatha Christie, murder novels and essays. So I was kind of confident in my abilities to crack CAT, so which is why I decided to go for it, and I don't regret any of it. I think just having that brand name in front of my name now, it brings a lot of value to what I used to have even before. I think इतनी ही able में चटकारा में भी थी, but somehow there's this stamp of approval now because you've done something. So it's completely true that nobody cares about how much work you put in if you don't win. So the bottom line is win. Go something, do something of yourself. So that was my motivation to go for CAT, and it's not like it's a very risky game. You could always go for an internship while doing it so that you can always have a backup plan to fall into. So a lot of working professionals also give CAT, right? So if somebody is in double minds, if I should do it, if I should not do it, it's not a zero-sum game. जब तुम लोग इंजीनियरिंग की प्लेसमेंट में बैठोगे तो तुम्हारा पहला राउंड एप्टीट्यूड राउंड ही होगा ना. कोडिंग तो बाद में करवाते हैं तुमसे, पहला राउंड तो एप्टीट्यूड राउंड ही होता है. तो जब तुम एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हो तो कोडिंग की जो प्लेसमेंट की तैयारी तो साथ में हो ही रही है. तो इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें बिल्कुल ही प्लेसमेंट छोड़नी पड़ेगी, उसके बिना तुम कर ही नहीं पाओगे कैट की तैयारी. इट कैन गो हैंड इन हैंड. सो माई एडवाइस इज कि तुम कैट की एप्टीट्यूड की तैयारी करो, और कोडिंग का एप्टीट्यूड तो कैट से ही निकल जाएगा. बाकी 4 साल तो तुम बीटेक कर ही रहे हो, कुछ तो DSL को भी पड़ी होगी, तो उसको भी बैलेंस करो और तुम्हें प्लेसमेंट मिल जाएगी, और वो भी कैट भी निकालने का अच्छा चांस होगा. इफ यू आर एक्चुअली डूइंग द वर्क, इट कैन बी बैलेंस्ड. बाकी इट्स माई कंसर्न इज ज़्यादा 4th ईयर में दे दो कैट, ठीक है? जब तुम कॉलेज में हो तो इतना बर्डन नहीं होता. बाई चांस कोई 4th ईयर में नहीं दे पाया या नहीं दे रहा है, तो व्हाट माई सजेशन इज गो फॉर समवेयर यू कैन हैव एन इंटर्नशिप, क्योंकि इंटर्नशिप में इतना प्रेशर नहीं होता है वर्क का. ठीक है, यू एटलीस्ट वीकेंड से तुम्हारे ऑफ होते ही होते हैं, तो तुम पढ़ सकते हो. और अगर कैट नहीं भी हुआ तो वो कंपनी 6 महीने बाद तुम्हें ऑफर कर देगी ना जॉब, या फिर तुमने इंटर्नशिप कर रखी है, प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, तुम लोग को जॉब ऑफर हो जाएगी लिंक्डइन पे. थोड़ा सा फाइट मार के
जॉब मिल जाएगी, तो तुम्हारे पास बैकअप ऑप्शन रहेगा। तो दैट इज़ माय रिकमेंडेशन, इस तरह से जाओ, क्योंकि 6 महीने के वर्क एक्स पे तुम्हें कोई खास पॉइंट्स मिलते नहीं है कैट में। इट इज़ व्हेन यू क्रॉस 1 ईयर ना, तब जाकर तुम्हें कुछ अच्छे 5-6 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, अदरवाइज़ 2-3 नंबर के लिए इट्स नॉट वर्थ इट। क्योंकि तुम इतना काम कर रहे होगे ना जॉब के साथ, कि तुम कैट की प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। स्पेशली व्हेन यू आर मूविंग टू अनदर सिटी, तुमने खाना भी खुद बनाना है, तुमने कपड़े भी खुद धोने हैं, तुम्हारा ट्रांसपोर्ट का भी है, तुम्हें एक सोशल लाइफ भी चाहिए, क्योंकि लोनली भी फील हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे और कोई है भी नहीं, नए फ्रेंड्स भी बनाने हैं। सो दैट इज़ टू मच टू टेक ऑन। तो बेस्ट टाइम इज़ लास्ट ईयर में कैट दे दो। सेकंड बेस्ट टाइम इज़ व्हेन यू जस्ट ग्रेजुएटिंग। सो एक मार्केट में ना हवा भी है कि फ्रेशर्स को नहीं देना चाहिए कैट, गेट वर्क एक्स एंड देन डू इट। एंड आई थिंक दैट्स कंप्लीटली वेलकम। तुम उठा के देख लो प्लेसमेंट्स, फ्रेशर्स की अगर खराब हो रही होती तो फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर रहे होते ना। और अगर फ्रेशर्स की खराब हो रही होती तो IIMs उन्हें लेते भी नहीं। बिकॉज किसी भी कॉलेज की रेपुटेशन किस चीज़ पे खड़ी होती है? इस चीज़ पे कि वो अपने बच्चों को प्लेस करवा देते हैं अच्छी जगह, अच्छे ROI पे प्लेस करवा देते हैं। अगर वो फ्रेशर्स को नहीं करवा पा रहे तो उनकी नीचे जाएगी ना ब्रांड इमेज। पर ऐसा नहीं है, इसलिए वो फ्रेशर्स को अप्लाई करने देते हैं, उनको हायर भी करते हैं, प्लेस भी करवाते हैं। सो लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट कि जो तुमने लॉन्ग टर्म में करना है, उसमें जितने जल्दी घुस जाओगे उतना जल्दी बेटर रहेगा, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उसी हिसाब से प्रमोशन होगी। तुम 2 साल वर्क एक्स करके जाओगे, फॉर एग्जाम्पल कोडिंग में कर लिया, ठीक है, MBA के बाद तो कोई गारंटी नहीं है कि तुम प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ही जाओगे। तुम मार्केटिंग में भी जा सकते हो, तुम सेल्स में भी जा सकते हो, तुम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी जा सकते हो, तुम कंसल्टिंग में भी जा सकते हो। दैट्स अ ड्रीम जॉब, राइट? तो उस वक्त तुम बताओ कि तुम प्लेस में बैठे हो कंसल्टिंग में McKinsey के आगे, और वो तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा वर्क एक्स है। तुमने बोला हाँ, तुम बहुत खुश हो, मेरे को 2 साल का वर्क एक्स है। बट हाउ इज इट रेलिवेंट टू देम? तुमने 2 साल कोडिंग किया, वेरी गुड, बट हाउ इज इट रेलिवेंट टू द कंसल्टिंग जॉब जो तुम लेने गए हो वहाँ पे, राइट? या तो तुम कहो कि तुम कंसल्टिंग ही करके आ रहे हो, तो तुमने प्रोफाइल बिल्ड कर लिया अपनी कि तुम जब जाओगे तो प्लेसमेंट में हेल्प होगी कि बच्चे ने पहले कंसल्टिंग की हुई है। बट एज एन एवरेज कोडिंग इंजीनियर तुम्हारा वर्क वेक्स इज ओनली रेलिवेंट टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट। तो अगर तो किसी ने सोच रखा है कि तुमने प्रोडक्ट मैनेजमेंट ही करनी है, तो मे बी इट्स अ गुड ऑप्शन कि तुम वर्क एक्स ले लो। वो कि वर्क एक्स के साथ थोड़ा आसान हो जाता है ब्लैकीज में जाना, स्पेशली इफ यू जनरल इंजीनियरिंग में एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं। बट इफ योर ड्रीम जॉब इज नॉट प्रोडक्ट मैनेजमेंट, then as a fresher give it your best shot. That's my advice. ओके, सो आपने क्या सोचा है, लाइक आप किस डोमेन में जाओगे आफ्टर MBA? So the thing is, a lot of people, especially me, and जो freshers होते हैं ना, जो खासकर कोडिंग छोड़ के आए होते हैं, जिन्हें पता है कोडिंग तो नहीं हो रही है, उनके दिमाग में कुछ खास नहीं होता नहीं है, मेरे में भी नहीं है। तो फिलहाल आई एम गोइंग फॉर जनरल मैनेजमेंट। कोई फर्स्ट ईयर तो हमारा कॉमन है ही, आई एम बैंगलोर में। सेकेंड ईयर में हमें इलेक्टिव्स मिलेंगे। सो पता है, 1 साल जब आप अंदर कॉलेज में जा चुके हो तो आपको पता है कौन से इलेक्टिव्स का क्या मतलब है। आप सीनियर से बात कर सकते हो, प्रोफेसर से बात कर सकते हो, यू विल मेक अ मोर इन्फॉर्म्ड चॉइस। तो फिलहाल आई थिंक मेरे माइंड में कुछ खास कहीं नहीं। बट ऑफ कोर्स कोई भी तुम भी बात करोगे ना MBA के बच्चे से, तो कंसल्टिंग, McKinsey, Bain और BCG मिल जाएगा, दैट्स द ड्रीम। But to be realistic as well, I think I'll go into college, I'll talk to my seniors and professors, and then I'll make an informed decision. But there are other options as well. जैसे IIM Bangalore में business analytics भी होता है, that is a specialized domain. और IIM Mumbai में operation and supply management, they are known for it completely. लखनऊ में sustainability management भी होता है, agriculture management भी होता है, both of them are very good courses. तो अगर तुम्हें पहले से पता है कि तुम्हें क्या स्पेशलाइजेशन करनी है, स्पेशली जैसे सप्लाई चेन, तो यू विल लीव बैंगलोर फॉर मुंबई एज वेल, बिकॉज दे आर नोन फॉर इट। बट इफ यू हैव अ जनरल माइंड सेट कि अभी नहीं पता, जो 90% लोगों को माइंड में नहीं होता है, तो देन यू गो बाय द सेम NINF रैंकिंग कि A, B, C बराबर हैं, L देन के साथ में एक्सल आई, फिर इंदौर, शिलोंग, वही वाला जो चलता है बेसिक्स वाला। Okay, you know, Aishwarya, like when we talk like with IIM guys, so क्या होता है कि टाइम किस तरह से निकलता है, like पता ही नहीं चलता, and like the kind of motivation and vibe like I get, वो बहुत ही like अपर और अमेजिंग लेवल की होती है। like जैसे कि होता है ना कि फोर्थ ईयर का बच्चा है BTech का, वो स्ट्रगल कर रहा है DSM में और प्लेसमेंट्स में ही, बट जब आप IIM वाले बच्चों से मिलते हो, सो लाइक उनके लिए जैसा आपने ही एक्सप्लेन किया, बहुत ही ईजी सा लगता है सब कुछ देख ऊपर से देखने में। So it's amazing. Yeah, I'll tell you why. Because hindsight में ना, I have the advantage of hindsight, मैंने ये सब कर लिया है। और डॉट्स, स्टीव जॉब्स की एक स्पीच थी बहुत अच्छी कि यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड्स। बिकॉज मैंने वो सब कर लिया है, और आई चूज टू नॉट टू मेक इट वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज
a lot of YouTubers, will go on the internet and they'll make it so hard कि इतना मुश्किल था, they'll overcomplicate it, not because it is that complicated, just because if you do something hard, तो तुम्हारी इज्जत ज्यादा होगी ना. यूपीएससी वालों की इज्जत क्यों है? क्योंकि very hard exam to crack. पैसे उनके कितने जितने आरबीआई के सेकंड ग्रेड ऑफिसर के होते हैं, है ना. उनकी इज्जत ज्यादा है, थोड़ी सी सोसाइटल डिस्पेक्टिव, बहुत डिफिकल्ट है वो एग्जाम क्रैक करना. तो मैं भी यहाँ पे आके यार वो ड्रामा कर सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है. मैं अभी कॉम्प्लिकेट कर रही तो चीज़ों को आधे लोग ऐसे ही रो देंगे कि हमारे बस की नहीं है. बट पॉइंट इज कि आई एम हेयर टू मोटिवेट पीपल टू डू समथिंग बेटर फॉर देमसेल्व्स, नॉट मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज आई हैव बीन देयर, आई हैव डन दैट. फोर्थ ईयर में जितनी एंग्जाइटी बच्चे को होती है, स्पेशली समवन हु इज नॉट वेरी इनटू कोडिंग, दैट इज ऑन अनदर लेवल. क्योंकि तुम्हें दिख रहा होता है कि तुम फैन जो के हो नहीं, और मार्केट रिसेशन में है, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो मास हायर करती हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, उन्होंने भी फ्रीज कर दिया हायरिंग इस साल. ठीक है, तो एंग्जाइटी बहुत अलग लेवल पे हो जाती है. एंड समटाइम ना पेन से एक्सपेक्टेशन ऐसे होती है कि तुम क्यों नहीं हो रहे प्लेस, तुम्हें पैकेज कम क्यों मिल रहा है, कंप्यूटर साइंस में तो बहुत पैकेज मिलता है, बस इतने मिल रहे हैं. तो उनसे शेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है वो चीज़, राइट. तो कुछ चीज़ें होती हैं कि ये फेस जो होता है ना, आपको साथ में खुद के ही निकालना होता है. कुछ लोगों को लगता है कि उनके बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स हैं सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट के लिए, तो वो भी चीज़ें फोर्थ ईयर में मैंने टूटते हुए देखी है. जैसे तुम लोग कॉलेज से पास आउट होते हो, 6 महीने के अंदर उनके ब्रेकअप हो जाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में जाके. वो बचपन और कुछ नहीं है. तो फाइनली क्या होता है ना, आपकी इमोशनल सपोर्ट के लिए और आपके सपोर्ट के लिए आप ही हो बस एंड में. और जब आप इतना हार्ड फेस खुद अकेले निकाल लेते हो ना, तो यू बिकम सिक्योर, यू बिकम कॉन्फिडेंट. जब तुमने वो अचीव कर लिया है, वो सारा लोनलीनेस फेस कर लिया तुमने, वो तुमने एकेडमिक रिगर फेस कर लिया है, तो तुम्हें अपने में ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है अपने लिए कि यू हैव डन इट. तो यू आर वेरी सिक्योर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इट. फोर्थ ईयर के बच्चे के साथ क्या होता है, उसने कुछ किया नहीं है, उसे भी करना है, उसको इतनी अनसर्टेनिटी दिख रही है अपने आगे कि वो डरा हुआ है. मुझसे तुम लोग बात कर लेते अगस्त के टाइम पे जब मैं ग्रेजुएट हुई थी, मुझे कोई सर्टन नहीं था कि मेरा कैट होगा कि नहीं होगा. I would have sounded very unsure and very shaky, right? But now I have the advantage of hindsight, and because I am secure, I want, मैं चाहती हूँ कि जब मेरी बात सुने बच्चे, तो उन्हें सिक्योर, हैप्पी और थोड़ा स्टेडी फील हो. क्योंकि एंग्जाइटी तो मिल ही रही है ना. एंग्जाइटी तो भर भर की जिंदगी दे ही रही है, उसमें क्या है. सो आई होप कि मतलब लोग देखें तो दे डोंट टेक इट वेरी ऑन हार्ट. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू. और अगर होता भी है, नहीं भी होता है, वेरी डिफरेंट थिंग. ठीक है, मेरी भी कोई गारंटी नहीं थी कि हो जाए. सो माई बेस्ट एडवाइस इज कि हेड योर बेट्स, डोंट कीप इट टू वन. तो आई जस्ट पॉइंट आउट फ्यू थिंग्स फॉर ऑडियंस. सो एनीबडी हु इज सीरियस अबाउट गिविंग MBA कि इसी साल देना है, स्पेशली कि वर्क एक्स बहुत ज़्यादा हो गया, अब MBA करनी है, तो उन लोगों के लिए आई से हेड योर बेट्स. कैट, जैट, स्नैप और NMAT, ये सब देना है. कैट इज फॉर IIMs, that is for Excel at Jamshedpur, which is as good as IIM Lucknow, if not better. And then there's SNAP for Symbiosis and SCHMRD. और फिर NMAT is for Narsing Munji. और काफ़ी बच्चों को पता ही होता है कि NMAT आप 3 बार दे सकते हो, बट नार्सी मुंजी मुंबई वाला जो मेन सेंटर है जिसके लिए आप जाते हो NMAT में, वो फर्स्ट अटैम्प्ट ही लेता है. तो मेरे कई दोस्त गए मॉक के हिसाब से फर्स्ट अटैम्प्ट दे आए कि अभी 2 अटैम्प्ट है, उन्होंने बाद चला कि मेन अटैम्प्ट था. तो वो वाली गलती मत करना कोई भी. NMAT का फर्स्ट अटैम्प्ट ही देना. मेरे हिसाब से सेकंड और थर्ड इज़ नॉट वर्थ गिविंग, क्योंकि तुम्हें जो स्कूल्स मिलेंगे KG सुमाया, वेलिंकर वगैरह, आई पर्सनली वोंट से कि उसमें जाओ, स्पेशली यू हैव वर्क एक्स. उससे बेटर है कि अगर वर्क एक्स है तो तुम मत ही जाओ, और अगर नहीं भी है तो तुम्हारे पास टाइम है ना वर्क एक्स लेने का, वो लेके दोबारा ट्राई कर लेना एक बार. और स्नैप का ऐसे है कि स्नैप या वो बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं ना, जिसमें क्वेश्चन तो ईजी होते हैं, पर स्पीड टेस्ट होता है कि कौन कितनी जल्दी कर सकता. वो स्नैप इज दैट. कैट और जैट इज नॉट दैट. कैट एंड जैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम. दैट इज लाइक, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ यार कि 100% जिसने स्कोर किया है ना कैट या जैट में, उसे 50% भी पेपर सॉल्व किया. ओके, ठीक है, तो उसका लेवल डिफिकल्ट होता है और आपको चूज करना होता है कि आपको देखना पड़ता है कि इजी क्वेश्चन कौन से उन्होंने टारगेट करना होता है. स्नैप इज कम्प्लीटली डिफरेंट. सारे क्वेश्चन आसान है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आसान है, तुम्हें जल्दी करना है. फर्क इतना पड़ता है कि तुम 40 सेकंड में कर सकते हो, और जो मुझे टॉप करेगा वो 30 सेकंड में कर सकता है. वो दैट इज अ स्पीड टेस्ट. तो मेन फोकस कैट जैट पे रखो, और वंस यू आर डन विद इट, फिर स्पीड टेस्ट स्नैप के मॉक्स दे लो, NMAT के मॉक्स दे लो. बट हेज योर बेट्स, बिकॉज इन MBA एग्जाम्स तो यार बहुत कुछ लग भी है, क्योंकि तुम काफ़ी चीज़ें अपने प्रोफाइल की ना चेंज नहीं कर सकते. 10th के मार्क्स चेंज नहीं कर सकते, +2 के मार्क्स चेंज नहीं कर सकते,
ग्रेजुएशन में भी कितने मार्क्स चेंज कर लोगे, तुम लास्ट ईयर में भी हो, कितना ही सीजीपीए बढ़ा लोगे, राइट? तो पॉइंट ये है कि जो चीज़ें तुम चेंज नहीं कर सकते वो चीज़ें काउंट होती हैं उसमें। तो इट्स बेटर कि तुम एक चीज़ पे एस्पिरेशन मत लेके चलो और अपनी जो है एक डिफरेंट बास्केट्स में रखो। ओके ऐश्वर्या, आई हैव अ क्वेश्चन। लाइक क्या होता है ना कि कई बच्चे कैट में बहुत ही अच्छा करते हैं, लाइक उनका 99 परसेंटाइल होता है, 98 परसेंटाइल होता है, बट स्टिल क्या है कि वो लाइक IIM से कॉल नहीं आती है उन्हें इंटरव्यू के लिए। तो आप बता सकते हो उसके पीछे का रीजन क्या होता है? Yeah, it's a common phenomena, first of all, because a lot of us have the perception कि CAT is the score you need to qualify, which is not true. CAT के बाद एक स्कोर बनता है जिसको हम कहते हैं कॉम्पोजिट स्कोर, ठीक है? कॉम्पोजिट स्कोर की कट ऑफ डिटरमाइन करती है कि आपको इंटरव्यू को कॉल आएगा कि नहीं आएगा। कॉम्पोजिट स्कोर में क्या क्या कंसिडर होता है, टेल यू। फर्स्ट होता है 10th के मार्क्स, फिर 12th के मार्क्स, तुम्हारे ग्रेजुएशन के मार्क्स, तुमने ग्रेजुएशन किस चीज़ में की है वो भी डिपेंड करता है, और उसके बाद चीज़ें तुम्हारे कैट का स्कोर भी। पर कैट का स्कोर भी नॉट एग्रीगेट कि तुम्हारे इतने परसेंटाइल आए हैं, इतने मार्क्स आए हैं। उसमें भी ये होता है हर कॉलेज का अलग, कि तुम क्वांट्स को ज़्यादा वेटेज देना चाहते हो, LRDI को ज़्यादा वेटेज देना चाहते हो, कि इंग्लिश के मार्क्स को ज़्यादा वेटेज देना चाहते हो कैट में भी। एज वेल एज ये भी चीज़ होती है कि 10th को कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 12th को कितने मार्क्स मिल रहे हैं, वो भी हर कॉलेज के डिफरेंट परसेंटेज है। यूजुअली इंदौर में क्या होता है, 10th और 12th का परसेंटेज इतना हाई है, ऑलमोस्ट 60%, कि अगर तुमने 90 स्कोर नहीं किया ना 10th और 12th में, तो तुम 100% टाइलर भी हो गए, तुम्हें कॉल नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती। इमेजिन ना, तुम 40% कोटा से 60% को तो ओवर पावर नहीं कर पाओगे ना कभी भी। करेक्ट। दैट्स द थिंग। तो फर्स्ट चीज है तुम्हारा कॉम्पोजिट स्कोर, वो तुम्हारे कैट के स्कोर से बिल्कुल डिफरेंट होता है, हर कॉलेज का डिफरेंट होता है, ठीक है? और जो रिजर्वेशन होती है वो 3 पैरामीटर्स पे होती है। पहला पैरामीटर होता है तुम्हारी कैटेगरी, ऑफ कोर्स, कि तुम जनरल से हो कि तुम बैकवर्ड से हो, ठीक है? सेकंड होता है एकेडमिक डाइवर्सिटी। अगर तुम नॉन इंजीनियर हो तो तुम्हें कम परसेंटाइल पे कॉल आ जाएगी, क्योंकि तुमने एकेडमिक डाइवर्सिटी इन द सेंस कि उन्हें नॉन इंजीनियर्स भी चाहिए कॉलेज में, तो उनको स्पेशल रिजर्वेशन मिलती है। तो आई नो पीपल फ्रॉम फैशन डिजाइनिंग बैकग्राउंड, जनरल, नॉट इवन फ्रॉम बैकवर्ड कास्ट, गेटिंग अहमदाबाद कॉल एट 88। ओके। शी वाज अ फीमेल दो। तो थर्ड रिजर्वेशन होती है जेंडर रिजर्वेशन। उसमें भी ये होता है कि 2 टाइप कॉलेजेस होते हैं। एक होते हैं तो वो सिर्फ एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे, फॉर एग्जाम्पल लखनऊ, बैंगलोर, दे गिव यू सम एक्स्ट्रा मार्क्स, कॉम्पोजिट स्कोर में 5 मार्क्स एक्स्ट्रा कर देते हैं तुम्हारे फिर गर्ल चाइल्ड, राइट? बट इवन इन सम कॉलेजेस लाइक कोझिकोड कुछ सीट्स भी रिजर्व होती हैं, तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इनफैक्ट कुछ सीट्स भी रिजर्व है लड़कियों के लिए टू मेंटेन द जेंडर रेशियो। तो इस बार आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा भी होगा लिंक्डइन पे, there's a post going viral कि आई एम रोहतक में 493 girls, girls, only 19 are boys. Right. So the worst category to be in is general engineering male, because ना तुम्हें कैटेगरी की रिजर्वेशन है, ना तुम्हें कैटेगरी डाइवर्सिटी की रिजर्वेशन है, ना तुम्हें जेंडर रिजर्वेशन है। तो ऑफ कोर्स तुम लोगों के कट ऑफ जो होंगे 99+ होंगे, बट इफ यू आर फ्रॉम जनरल नॉन इंजीनियरिंग फीमेल तो तुम्हें 95 पे भी बड़े आराम से ब्लैकी से कॉल आ सकते हैं। और अगर तुम OBC नॉन इंजीनियर फीमेल हो, 80s पे भी आ सकते हैं। तो इट्स कम्प्लीटली प्रोफाइल बेस्ड, और तुम्हें 10th 12th के मार्क्स बेस्ड भी। सो इट्स अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट फाइनली कंबाइंड इनटू मेकिंग सेंस। अब मुझे बैंगलोर की कॉल थी और मुझे अहमदाबाद की कॉल नहीं थी, मुझे पता था इसलिए नहीं होगा, मैं +2 के मार्क्स खराब है, 70 और 80 के बीच में, और मुझे पता था कि जो मर्जी कर लूँ मैं उसे ओवर पावर नहीं कर पाऊंगी, उसे +2 के परसेंटेज बहुत हाई है कॉम्प्लीट स्कोर में जो वो लेते हैं, ठीक है? तो लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स कि तुम कैट में जितना मर्जी अच्छा स्कोर कर लो, इट इज ओनली एज वर्दी एज द कॉलेज डीम्स दैट स्कोर टू बी। अगर कैट के स्कोर को वो सिर्फ 20% वेटेज देते हैं तो तुम टॉप कर जाओ ऑल इंडिया, तुम्हारी प्रोफाइल तुम्हें अलाउ नहीं करेगी वहां जाना, राइट? सो इट्स बेटर कि तुम अपनी प्रोफाइल लो, एंड देयर इज दिस कॉल्ड थिंग कॉल्ड IIM प्रोफाइलाइजर। ये कैरियर लॉन्चर का प्रोफाइलाइजर है और मुझे पैसे नहीं मिले इस चीज़ के, इनफैक्ट मैं कैरियर लॉन्चर पे पढ़ी भी नहीं थी, बट आई टेल यू आई यूज दैट ऐप। तुम उस पर अपने 10th के मार्क्स डालो, फिर 12th के मार्क्स डालो, ग्रेड के मार्क्स डालो, जेंडर डालो, ये सब वो तुमसे पूछेंगे। उसके बाद तुम्हें एक रफली एस्टिमेट दे देंगे कि तुम्हें कितना परसेंटाइल चाहिए कॉलेज में जाने के लिए, बेस्ड अपॉन द पास्ट ट्रेंड्स। और उसको बहुत सीरियस मत लेना, +-2% होता है हर साल, क्योंकि बच्चे बढ़ जाते हैं, उस हिसाब से परसेंटाइल भी मिल जाती हैं, बट मोर और लेस तुम्हें एक रफ आइडिया आ जाएगा कि तुम्हें कितने मार्क्स मिलने हैं तो आएंगे। अब SP जैन में उस प्रोफाइलर ने मुझे दिखाया था कि मेरी प्रोफाइल वीक थी फॉर SP जैन, क्योंकि हमें फ्रेशर एज वेल, तो 99.9 चाहिए।
तो मैंने बोला क्यों ही मैं अपने पैसे खराब करूँ अपनी फीस भर के, 99.9 तो नहीं आ रहे ना मेरे। तो आई थिंक इफ यू गो एंड यूज इट प्रोफाइलाइजर, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली रियलिटी चेक मिल जाएगा कि व्हाट decent chances you have of making it into a good college, so that you can manage your expectations as well. और once you get an interview call also ना, तो तुम्हारे इंटरव्यू पे बेस नहीं होता है फाइनल सिलेक्शन, वो भी तुम्हारा 10th +2 कैट का स्कोर, इंटरव्यू का स्कोर, एकेडमिक डाइवर्सिटी, कैटेगरी, जेंडर डाइवर्सिटी, इसके बेस पे होता है, और उसके परसेंटेजेस भी हर एक कॉलेज के अलग है। सो इट इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल कि तुम्हें अहमदाबाद एक्सेप्ट कर ले, सीट दे दे, और तुम्हें अमृतसर मना कर दे, which Okay. is completely mind-boggling. But हर एक का criteria अलग है यार. So there are two composite scores: composite score before the interview and composite score after the interview, which determine your final placements. CAT score have almost little to do with it sometimes. Okay. Like I have a question for you. Like अगर किसी के 10th 12th में अच्छे मार्क्स नहीं है एंड वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, सो क्या उसे Right. कैट लाइक छोड़ देना चाहिए? नहीं, absolutely not. See, प्रोफाइल में तुम 10th मैच नहीं कर सकते, 12th मैच नहीं कर सकते, राइट? बट तुम उन्हें वर्क एक्स मैनेज कर सकते हो. यू कैन एटलीस्ट गो विद वर्क एक्स, ताकि तुम्हें वर्क एक्स से फुल पॉइंट्स मिले. तुम्हें ऑब्वियसली 99 प्लस स्कोर करना पड़ेगा. एंड यू कैन हैव some stuff like maybe if your category, अगर हाँ, वही। कैटेगरी नहीं, अगर हाँ, जनरल अगर तुम जनरल इंजीनियरिंग में लो, तो माई एडवाइस इज कि गो फॉर वर्क एक्स, as well as try to maximize your CAT score as well. 99 point something लाना मुश्किल है, पर 99 तक लेके आना इट्स रीचेबल, ठीक है? एंड इफ यू आर रियलिस्टिक अबाउट योर गोल्स कि ठीक है तुम्हें ब्लैकीज के अलावा भी अच्छे IIMs और अच्छे स्कूल्स हैं, राइट? अगर तुम्हें टॉप 20 भी कॉलेजेस में से मिलते हैं इंडिया में, तो इट्स टोटली वर्थ इट. Okay. And what are Yeah. that blackies? हाँ, तो एक ना कल्ट है IIMs में भी, these are called blackies, या फिर आजकल ब्लैकिज्म कहते हैं इसको. B for Bangalore, L for Lucknow, A for Ahmedabad, C for Calcutta, K for Kozhikode, I for Indore, S for Shillong, and M for Mumbai. It's called blackism या blackies. अब कि मुंबई इसी साल यार IIM बना है, last year it was Niti. Okay. So Niti got converted into IIM Mumbai this year only, first time, जब मैंने गाइड किया. So now it's called blackism. So these are the elite institutes in IIMs as well. Because the IITs में भी होता है ना, Delhi and Bombay and Madras have a trio that is the unbreakable holy trinity of IITs. These are the ABC is the holy trinity of IIMs, and the top 7 are blackism. So these are the best dream colleges to get into, but there are many upcoming colleges like Rohtak, Ranchi, Trichy, Sambalpur, Raipur, Udaipur, which are doing exceptionally well. Okay, so these are also dream schools, and then there's colleges like SP Jain, there's colleges like FMS, JBMS, JPIMS, and there's TIS. काफी अच्छे कॉलेज और भी हैं जो इन लोग को टक्कर देते हैं. So if you actually go and research into the market, तो you'll realize कि the more you hedge your bets, the more realistic you have a chance of converting a call. ओके. अब थोड़ा सा आते हैं लाइक आपकी प्रिपरेशन की तरफ. लाइक इसके बाद हम चलेंगे कि नॉर्मल प्रिपरेशन लाइक जो आपने कैट के लिए की, एंड उसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, आई गेस. Right. या सो Absolutely. या तो लाइक आपकी इनिशियल प्रिपरेशन कैसी थी लाइक कैट के लिए? Yeah, CAT के लिए ना, I'll tell you the best things to do for CAT and the mistakes that I made to avoid, right? So let's start with what to do. First of all, CAT, लोग ना परसेंटाइल सुन के ना परसेंटेज ही माइंड में बनाते हैं सबकॉन्शियसली, बिकॉज हमारी ना जो ग्रूमिंग है बचपन से ही, दैट इज बेस्ड ऑन परसेंटेज नॉट परसेंटाइल. तो आई डोंट टॉक इन परसेंटाइल, आई डोंट टॉक इन परसेंटेज, आई लाइक टू टॉक इन मार्क्स और क्वेश्चंस, ठीक है? सो दैट आई कैन मेक इट रियलिस्टिक फिगर. सो जस्ट टू गिव सम स्टैट्स, 24 क्वेश्चन आते हैं VRC में, विच इज इंग्लिश, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. इफ यू डू 8 क्वेश्चंस, यू आर इन द टॉप 10 percentile. Only 8 out of 24. Then the next section is LRDI or mental ability. LRDI is logical reasoning and data interpretation. उसमें 20 questions में से if you do 5, you are again in the top 10 percentile. Next and the last section is quants, which is mathematics. उसमें 22 questions आते हैं, उसमें भी तुम 5 to 6 questions कर लोगे in the top 10 percentile. If you have 90, 90, 90, top 10 percentile in all of them, right?
So automatically your aggregate score is going to be somewhere around a 98, right? So CAT is not a knowledge academic driven question paper. It's selection based question paper, because when you become a manager, तुम्हारी selection बहुत matter करती है कि what battles you pick and what you let go, right? तो as long as you practice a lot of mocks, तुम्हें identify करना आता है कि easy questions कौन से हैं और तुम hard questions को let go कर सकते हो. So I always joke कि CAT will teach you the art of letting go. Once you give CAT, तुम्हें कुछ दिल पे नहीं लगेगा. It will teach you कि कैसे बुलानी है चीजें in personal life. So I think as long as you have the right strategy in place ना, and your basics are clear, अगर तुम्हें 10th तक की भी मैथ्स ठीक से आती है, तुम्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश भी तुम्हारी ठीक है, तो 90 परसेंटाइल लाना is nothing, because a lot of people sitting in CAT, उनकी स्ट्रैटेजी ही गलत होती देते हो. बिकॉज 20 में से 5 क्वेश्चन कौन में ईजी आते हैं, होता ये है कि यू पिक द हार्ड पैटर्न्स एंड देन यू नॉट एबल टू सॉल्व इट. सो इफ यू आर नॉट गेटिंग अ 90 परसेंटाइल, योर स्ट्रैटेजी इज रॉन्ग. Once you get a 90 percentile overall, that means your strategy is fine, your basics are in place. After that, थोड़ी knowledge का फर्क पड़ता है. If you know a specific formula or you know a specific detail about something, जो कि बहुत specific अगर तुम्हें आता है तो आता है. इसलिए कि कुछ चीज़ें सॉल्व होती है ना सिर्फ फॉर्मूले से. तुम्हें याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो हो ही नहीं सकता सब. तो वो उसके बाद वो परसेंटाइल जो गेन होती है वो नॉलेज होती है. पर 90 तक तो स्ट्रैटेजी है. It's complete strategy based program. So I want anybody who is just giving CAT to give at least 40 plus marks. And let me tell you, 3.5 लाख और 3 लाख तो बस यही होता है कि इतने बच्चे बैठे हैं. ट्रस्ट मी, आधे से ज्यादा तो मुंह धो के आए होते हैं जिन्होंने कुछ तैयारी नहीं की होती. ठीक है. और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जा रहे होते हैं बच्चे, मुझे पता है मेरे साथ के बच्चे थे ना होमवर्क करते थे ना मॉक्स देते थे. तुम्हारा उनसे कॉम्पिटिशन है ही नहीं ब्रो. तुम्हारा कॉम्पिटिशन उन बच्चों से जिन्होंने 30 प्लस मार्क्स दिए हैं, जिनकी स्ट्रैटेजी इन प्लेस है, और वो है ही बहुत कम बच्चे. सो इफ यू जस्ट हैव अ राइट स्ट्रैटेजी, तुमने मार्क्स दिए हुए हैं, तुमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं और उन्हें अच्छे से एनालाइज किया है ना, तो तुम्हारा कुछ ना कुछ डिसेंट कॉलेज में हो ही जाएगा, इतनी बड़ी गारंटी है. पर लोग क्या करते हैं, तुम मार्क्स देते भी है ना तो वो एनालाइज नहीं करते. अगर तुम कुछ मार्क्स दे रहे हो, उन्हें एनालाइज नहीं कर रहे हो, उनकी गलती से सीख ही नहीं रहे हो, तो तुम वही गलती दोबारा करोगे नेक्स्ट मार्क्स में. वो नहीं करना है. तुम्हें मॉक्स देने ही है, उन्हें अच्छे से एनालाइज करना है, उनसे सीखना है. एंड वंस यू स्टार्ट गिविंग मॉक्स, तो तुम देखोगे कि बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं. जैसे ना एक चीज होती है पाइथागोरस ट्रिप्लेट्स. एक ये कॉन्सेप्ट इतना यूज हुआ है ना CAT में कि ये रेपिटेटिव यूज होता है. तो यू विल स्टार्ट नोटिसिंग अ पैटर्न एज वेल. तो तुम उस पैटर्न को पकड़ सकते हो. तुमने मॉक्स दिया और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स किए हैं तो वो करने बहुत जरूरी है. बट लोग क्या होता है ना यार, मॉक्स में परसेंटेज स्टार्टिंग बहुत कम आती है क्योंकि तुमने अभी भी शुरू किया, ऑब्वियस सी बात है. बट लोगों पे वो ईगो पे हिट कर जाती है कि नहीं यार मैं अभी दूंगा, मैं सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना तब मॉक्स देना शुरू करूंगा. तो ये गलती मत करना. गो एंड स्टार्ट गिविंग मॉक्स. डोंट जज योरसेल्फ ऑन द परसेंटाइल यू आर गेटिंग इन द फर्स्ट गो. जज योरसेल्फ ऑन द इम्प्रूवमेंट यू मेक एवरी सिंगल टाइम. ओके. एंड लाइक व्हाट अबाउट यू, लाइक आपकी प्रिपरेशन किस तरह से थी एंड क्या आपका शेड्यूल रहता था, किस तरह से आपने सब्जेक्ट्स टारगेट किए थे? Right. So with the easy section में ना VRC and the hardest section was NRDI. Because English मेरी रीडिंग स्पीड की वजह से सही रहती थी, बिकॉज लॉट ऑफ नॉवेल्स आई रीड. तो इंग्लिश में मेजर जो सेक्शन होता है 70% इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं और फिर नॉन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन होता है. बिकॉज आई वाज रीडिंग टू फास्ट और मुझे बार बार ना वापस आके दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता सेकेंड टाइम. अगर मैंने एक बार पढ़ ली वो चीज़, इट रिटेन्स विद मी. तो होता ये था कि आई वॉज एबल टू डू RCs मच फास्टर देन एन एवरेज स्टूडेंट. उनको 7 मिनट लगते थे एक RC में, मुझे 5 मिनट लगते थे. तो 5 मिनट और 4 RCs, 2 मिनट बचाए पर RC में नहीं, तो मैंने 8 मिनट बचा लिए RCs में ही. तो मेरे पास 8-10 मिनट का बफर होता था नॉन RCs करने के लिए. तो ऑब्वियसली आप कुछ टाइम ज़्यादा, आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो तो आप उसके ज़्यादा स्कोर भी आएगा मोस्ट प्रॉब्ली. तो उस वजह से मैं इंग्लिश सॉर्टेड हुआ. तो इंग्लिश में मैं यही कहूँगी, फर्स्ट चीज़ तो है कि तुम बहुत रीडिंग करो, खास करके तुम रीडिंग बैकग्राउंड से नहीं हो. और आजकल के बच्चे नहीं होते यार, इन सबको नेटफ्लिक्स वेब सीरीज दिखा लो, बुक्स किसी ने पढ़ी भी होंगी, चेतन भगत की पकड़ी होंगी, उससे ऊपर ये लोग जाते ही नहीं है कुछ अच्छा पढ़ ले. ठीक है, तो रीडिंग पढ़ाओ अपनी. इवन इफ यू स्टार्ट विद कॉमिक्स आई डोंट माइंड, बट कुछ पढ़ो. और जब तुम पढ़ो तो कॉन्शियसली पढ़ो कि अगर मैं तुमसे आके पूछूं मनीष कि तुमने ये पढ़ा, इसकी समरी बताओ मुझे, तो ये नहीं होना चाहिए कि तुमने पढ़ तो लिया पर अब समराइज नहीं कर पा रहे हो. दैट मीन्स यू नॉट कॉन्शियसली रीडिंग इट.
तो मैं Correct. तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी, तुम्हें फिर आंसर खोलना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा। तुमने पढ़ा है वैसा कुछ, बट एग्जैक्टली यू डोंट रिमेंबर द डिटेल्स, दैट विल कॉस्ट यू। कैट में वहां पे इतना टाइम नहीं होगा कि तुम मुड़ के सेम चीज पे जा सको, बैक फॉरवर्ड कर सको। तो रीड द आंसर वेरी कॉन्शियसली, दैट्स माय फर्स्ट एडवाइस। अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ाओ। एंड थर्डली, इंग्लिश में ना यार सही ऑप्शन नहीं होता आंसर का। 4 ऑप्शन होता है, एक गलत होता है, एक सही होता है, एक ज्यादा सही होता है, और एक एक्चुअल में राइट आंसर होता है। The options are that close. और sometimes even explanation में ना आंसर की में लिखा होता है कि इन 2 क्वेश्चन आंसर में से ये ज्यादा सही है, दूसरा वाला गलत नहीं है, वो ज्यादा सही है। तो उसका एक तरीका होता है कि डोंट ट्राई टू फाइंड द राइट आंसर। तुम राइट आंसर ढूंढने जाओगे, तुम्हें एक तुम्हें 3 राइट आंसर दिखाई देंगे, क्योंकि तीनों राइट है। तुम्हें देखना है कि इनमें से रॉन्ग कौन सा है। तुम रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट करना शुरू करोगे तो तुम्हारे में वो चीज बनेगी कि इसमें यार ये सही लिखा है, बट और सही हो सकता था, ये ऐड करना चाहिए था, वो रेलेवेंट पॉइंट भूल गए। दैट्स व्हेन यू विल स्टार्ट एक्चुअली गेटिंग द राइट आंसर्स। एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर्स, डोंट ट्राई टू लुक फॉर द राइट आंसर्स। और इंग्लिश में बहुत डेप्थ ट्रैप होता है, उसे हम कहते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। उसमें क्या होता है कि यू आर गिविंग 4 सेंटेंसेस एंड यू आर गिवन नो ऑप्शंस। तुम्हें हर रीअरेंजमेंट कैसे भी टाइप करना पड़ेगा कि 1 2 3 4 है कि 3 2 4 1 है। तो बिकॉज यू हैव टू टाइप एंड इट्स नॉट एन ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन, तो नेगेटिव मार्किंग होती है। दैट इज व्हाई ऑलरेडी डेथ ट्रैप। तो बच्चे क्या करते हैं कि नेगेटिव मार्क्स है नहीं, तो इसको अटेम्प्ट करते हैं। बट बी रियलिस्टिक अबाउट इट। अगर 1 2 3 4 भी है और तुमने 1 3 2 4 भी कर दिया, जिससे चांसेस बहुत हाई है, तो तुम्हारा 0 मार्क्स हो गए, पर तुमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया उस चीज में। चाहे तुम्हें नेगेटिव ना मिले, पर तुमने टाइम कितना वेस्ट कर दिया उस डेथ ट्रैप में, दैट्स द पॉइंट। और तुम स्ट्रेस एनवायरनमेंट में जब हो, तो ट्रस्ट में तुम 4 सेंटेंसेस को रीअरेंज नहीं कर पाओगे कभी भी ठीक तरीके से, बनता ही नहीं है, बिकॉज द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर एंडलेस, राइट। एंड a lot of times जो rearrangement होती है that is too close. It's not as simple as कि तुम्हें बीच में conjunction दे आ दिया है, conjunction की तुम्हें पता चली जाएगा कि obviously यही third option है। Sometimes option are too close and you will waste a lot of time. और लोगों की ना बहुत defensive strategy होती है when they go into the question paper ना, कि non negative वाले questions कर रहे हो। भाई तुम non negative वाले questions तो कर रहे हो, पर उसके सही होने के चांसेस इतने कम है। तुम जब पेपर देने जा रहे हो, वो go and play on the offensive। जिस क्वेश्चन के 50 चांसेस हैं ठीक होने के, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना। आरसीएस में यूजुअली क्या होता है कि 4 ऑप्शन है, तो तुम 2 एलिमिनेट बहुत आराम से कर लेते हो कि ये दोनों आंसर्स नहीं है, बाकी 2 ही बच जाते हैं। एंड में तो तुम्हारा 50% चांस है, पर तुम लोग जाके उस क्वेश्चन में जाकर अटक रहे हो, उस क्वेश्चन को टाइम दे रहे हो, उसके 10% से कम चांसेस है यार होने के सही, राइट। सो माई थिंक इज डोंट फॉल फॉर दैट डेथ ट्रैप फॉर दोज नो नेगेटिव क्वेश्चंस। मैक्सिमम हो सकता है कितना टाइम दो, तुम एक बार सारे पढ़ लो सेंटेंसेस, पहली तुम्हारी जो इंस्टिंक्ट है ना वो लिख दो, बस उसके बाद उस क्वेश्चन पे लौट के नहीं आना, उसे रिवाइज नहीं करना। एंड ट्रस्ट मी, दिस स्ट्रैटेजी हैज ऑलवेज वर्कड। 3 से 10 रीअरेंजमेंट में से मेरे 2 सही होते थे, विच इज ऑलमोस्ट अ मिरेकल। इवन टॉपर्स की भी 1 या 2 सही होते हैं जो 100% टाइलर्स होते हैं, राइट। सो द थिंग इज डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप, इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड। और पढ़ने की लिहाज से एऑन एसेज करके एक साइट है, वो पढ़ लो। और GMAT की जो ऑफिशियल गाइड आती है ना, दैट इज वेरी गुड फॉर आरसीज, वो बाय कर लो। इट्स अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव यस, बट टोटली वर्थ इट। दैट इज फॉर इंग्लिश। दैट फॉर बाकी आई यूज्ड टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू LRDM, क्योंकि मेरा वीक था। तो LRDM में ना ओवरऑल 2 स्ट्रैटेजीज होती हैं, उसमें 4 ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक्स में आगे आगे 4 क्वेश्चन होते हैं। ब्लॉक्स आर लाइक कि तुम्हें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रखी है 15-20 स्टेटमेंट्स की, और तुम्हें उसकी बेस पे टेबल बनाना होगा, या फिर तुम्हें पैराग्राफ दे रखा है, डेटा दे रखा है, उसको इंटरप्रेट करके 4 क्वेश्चन आंसर करने होंगे। तो पहली स्ट्रैटेजी होती है कि तुम देखो कि इजी ब्लॉक्स कौन से हैं, ठीक है, और उस ब्लॉक को पूरा सॉल्व कर लो। एंड समहाउ आई वाज वेरी अनलकी, मतलब पता नहीं, मैं जाके बता हार्ड ब्लॉक से मारती थी हमेशा, मुझे तो ये आसान है, और वो सबसे टफ निकलता था एंड में एनालिसिस में। बट मैंने रियलाइज किया कि मेरे बस की तो है नहीं, मुझसे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि कौन सा ईजी है। तो मैं फर्स्ट स्ट्रैटेजी नहीं यूज करती थी। आई यूज्ड टू गो विद द सेकंड स्ट्रैटेजी, दैट इज सब कुछ कर लो, जितना होता है कर लो। तो आई यूज्ड टू डू वाज कि एक मैंने ब्लॉक पकड़ा, पढ़ लिया, 4 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन ऐसा होता था जो अबव इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है ना, उससे बहुत आराम से निकल सकता है, वो मैंने क्वेश्चन कर दिया और देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट ब्लॉक। तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक ब्लॉक पकड़ा है, उसके चारों के 4 क्वेश्चन मुझसे हो रहे हैं, नहीं हो रहे, पूरा टेबल नहीं बन रहा मुझसे। पर एंड में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे मार्क्स कैसे आ रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से आ रहे हैं या थर्ड क्वेश्चन से आ रहे हैं, है ना। मैटर ये करता है तुमने कितने क्वेश्चन ओवरऑल सॉर्ट किए। तो मैं 4 ब्लॉक अटेम्प्ट करती थी, जितना होता उतना कर देती थी।
तो लिटरली मैंने कैट में भी मेरे चारों के एक 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 क्वेश्चन हुआ है, एक दो क्वेश्चन हुआ है, कोई ब्लॉक में से फुली कंप्लीट नहीं हुआ कभी भी, बट इवन देन आई वाज एबल टू clear the minimum cutoff, so I was sorted. So that is the second approach I used to take, but a lot of people are good in LRD and मेरे कई इंजीनियरिंग फ्रेंड्स जो बहुत ही अच्छे थे, उनका स्ट्रैटेजी ये रहती है कि पहले इजी ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करो, उनके सारे क्वेश्चंस करो कि हो जाते हैं, उसके बाद मीडियम ब्लॉक पे जाओ, उसके सारे नहीं होंगे एक दो हो जाएंगे, ठीक है, वो अटेम्प्ट करो और तुम 99 क्रॉस कर जाओ इजीली. सो दैट इज अ स्ट्रैटेजी फॉर एनआरडीए. और क्योंकि मेरा वीक सेक्शन था, तो आई यूज टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू एनआरडीए एंड दैट इज व्हाट आई रिकमेंड एवरीबॉडी. क्योंकि हर कोई पता नहीं क्यों अपनी स्ट्रेंथ की ही ज़्यादा प्रैक्टिस करता रहता है. उनको लगता है कि देयर कंपनसेट देयर वीकनेस विद देयर स्ट्रेंथ, बट यार तुम 99.9 को ओवरऑल ले आओगे, ठीक है, और तुम्हारी किसी सेक्शन की वीक सेक्शन की अगर कट ऑफ क्लियर नहीं मिले मिनिमम, तो इट्स नॉट वर्थ इट, तुम्हें कोई कॉल नहीं आएगा, राइट. सो मेक श्योर कि अपनी वीकनेस की प्रैक्टिस करो, इनफैक्ट ज़्यादा करो मेरे हिसाब से. क्वांट्स का सिंपल ऐसे है, कमिंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आई कैन नॉट से कि मेरा वीक था, मेरा बहुत सही था. इनफैक्ट मैंने एनटीएससी एनकैट काफ़ी एप्टीट्यूड एग्जाम्स दिए हुए हैं, तो काफ़ी मेरा बेटर था. तो इनफैक्ट आई हैव एन एडवांटेज इन दैट सेंस. तो जिनका नहीं है अच्छा, उनके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि अरिथमेटिक और अलजेब्रा ये दो टॉपिक्स हैं जिनके लेवल 3 तक पढ़ो, ठीक है, बहुत डीप तक जाओ क्योंकि इससे क्वेश्चन डीप तक आते हैं. जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, पीएनसी, ज्योमेट्री और ये इनका लेवल 1 तो कर लो एटलीस्ट. तो अगर मान लो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाए, तो तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमसे हुआ नहीं. लेवल 1 क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए सबके. बट इज अ बुक कॉल्ड अरिहंत, पब्लिकेशन है ये. वो टॉपिक वाइज ना हर पॉइंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो हर एक टॉपिक के, तुम देखोगे कि एक टाइप के ना क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार मैथ्स में, और उन क्वेश्चन को अच्छे से करके जाओगे तो तुम्हारा पॉइंट निकल जाए. पॉइंट्स में 5 क्वेश्चन करने हैं 22 में से 5 निकल जाएंगे. मैं कैसे करती थी, आई यूज टू स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया, अगर मुझे लगता है कि ये ईजी है क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, तो मैंने उसी वक्त कर दिया और मार्क किया आंसर और आगे बढ़ गए. अगर मुझे लगा कि हो जाएगा बट थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया और मूव ऑन कर लिया. अगर क्वेश्चन हार्ड है, पढ़ के पता चल रहा है कि नहीं भाई ये तो इसमें पीएनसी लॉग और सब कुछ एक साथ ही मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, मुझसे नहीं होगा, उसको हार्ड स्किप कर दिया, उसको मुंह पर देखा भी नहीं. तो लिटरली कैट में मैंने जब पहला राउंड ऐसे क्लियर किया, सिर्फ इजी क्वेश्चंस करने और मार्क को रिव्यू करने मीडियम क्वेश्चंस, तो मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन हुए थे, विच इज़ फाइन, विच इज़ टोटली फाइन. फिर मैं आई वापस अपने मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस पे और मैंने वो करने शुरू किए. तो कई बार जब आप मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस करना शुरू करोगे, ऐसा होगा कि आप एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो जाएगा पर होगा नहीं. और क्योंकि आपने इतना टाइम और एनर्जी पे इन्वेस्ट कर दी है ना, तो आप उसको ईगो में ले जाओगे, ये तो मैं करके जाऊँगी, ये तो करना पड़ेगा. दैट इज वेयर योर टाइम गोज. तुमसे अगर 1.5 मिनट्स मैक्स टॉप्स नहीं हुआ है क्वेश्चन, उसे छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ. तो मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस में तुम साइकिल में करो, पहली साइकिल में कितने हो जाते हैं, सेकंड साइकिल में कितने हो रहे हैं, उस हिसाब से. समटाइम्स ये होगा कि तुम जब वापस आओगे ना उस क्वेश्चन पे तुमने ऑलमोस्ट कर लिया था और दोबारा अप्रोच करोगे, वो तब हो जाएगा, पर उस वक्त जब तुमसे नहीं निकाला तब नहीं होगा. तो क्वांट्स का बेस्ट आइडिया होता है स्पेशली फॉर नॉन इंजीनियर्स कि तुम साइकिल में करो वो क्वेश्चन पेपर, नेवर इन वन गो. और जो चीज़ हार्ड है एटलीस्ट उसको कंसीड करो कि तुम्हारे लिए ये टॉपिक हार्ड है, ये नहीं होगा, उसको सिप करना सीखो. तुम्हें 22 में से सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने हैं यार टॉप 10 परसेंटाइल में आने के लिए. 5 से तुम ढूंढ सकते हो. तुम कोई भी पेपर उठा के देखो कैट का, 5 स्ट्रेट फॉरवर्ड ईजी क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे. वो उनकी गलती नहीं है कि तुम जाके हार्ड क्वेश्चन से पिक करते हो सॉल्व करने के लिए, राइट. सो फॉर नॉन इंजीनियर्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज पिक योर पैटर्न्स. ओके, लाइक आपने बताया जैसे कि क्वांट में 22 में से 5 करना है. इंग्लिश सेशन भी ऐसे ही कुछ था, लाइक बहुत ही लो था. तो अगर कोई लाइक तुक्के के बेस पाए तो कोई चांस बनता है, लाइक अगर किसी को नहीं आ रहा है कुछ? यार नेगेटिव मार्किंग है, आई विल नॉट रियली से कि तुम तुक्के के लिए जाओ, पर एक चीज होती है जुगाड़. और रेस टू 99 करके ना एक सेशन चलाता है कैरियर लॉन्चर, तो मैंने 1-2 शख्स उनकी की थी, तो वो तुम्हें सिखाएंगे कि तुम्हें हर चीज़ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कॉन्स में. कभी कभी ना ऑप्शंस देख के तुम बता सकते हो कि ये फिट होता है, ये फिट नहीं होता, पर वो प्रैक्टिस के साथ ही आता है. तो वो जुगाड़ तुम लगा सकते हो, कंप्लीटली नहीं कहूँगा कि तुम अकड़ बकड़ बम्बे वो करके तुम कुछ मार्क कर दो, दैट विल गो वेरी साउथ. बट उसमें भी यार एक चीज़ है, हमारे कैट में क्या हुआ, 8 क्वेश्चन टीटा टाइप आ गए
टीटा टाइप का मतलब होता है विदाउट ऑप्शन आपको टाइप करने हैं। कर लो, अब क्या जुगाड़ करोगे, अब क्या कर लोगे, ठीक है। तो कैट इज वेरी गुड एट थ्रोइंग सरप्राइज एट यू। तो तुम्हें जुगाड़ भी लगाने आने चाहिए और तुम लोगों को पूरा सॉल्व करना भी आना चाहिए। दैट्स अ थिंग। तो ठीक है, कभी कभी बहुत लाइफ अच्छी भी हो जाती है। आई टेल यू, थीटा क्वेश्चन में हुआ ये था कि अब टाइप करने हैं तो नॉन नेगेटिव क्वेश्चन का मतलब तुमने गलत आंसर भी दिया तो नेगेटिव नहीं होंगे। तो यार लास्ट के ना 2 मिनट बचे थे और मुझे और कोई क्वेश्चन हो ही नहीं रहा था मैथ्स का। तो आई रियलाइज कि अब नहीं होगा, 2 मिनट में क्या ही कर लूंगी मैं अब। तो मैं बोला कि थीटा क्वेश्चन कुछ भी लिख देते हैं, व्हाट आर द चांसेस ऑफ इट एक्चुअली गेटिंग राइट। वो रिमार्केबली लेस, राइट? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी आंसर हो सकता है। Right. तो एक क्वेश्चन था उसमें 42 एक वर्ड लिखा हुआ था, नंबर आगे पीछे कुछ था। तो मैं बोला कि 42 उल्टा कर देते हैं, 24 कर देते हैं, कुछ भी मतलब टाइम पास करने के लिए लास्ट के 2 मिनट, और मिराक्युलसली ठीक हो गया। Oh. But the chances of that actually happening are extremely, extremely, extremely low. Would I advise you to bet on that? Absolutely not. जितना तुम bet कर सकते हो जुगाड़ भी कर सकते हो। Try to reverse engineer the question कि तुम options fit करके देखो उस question में। कुछ options जो है जो तुम पहली गो में ही निकाल दोगे कि ये तो possible ही नहीं है, too far away from the question, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि तुम कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन पढ़ोगे तो रियलाइज करोगे आंसर जो होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। और अगर ऑप्शन में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एक ही परफेक्ट स्क्वायर है, तो तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना। वो सब जुगाड़ यूज करना इज कम्प्लीटली फाइन, वो सब तुम्हें जुगाड़ यूज करने चाहिए। बट कम्प्लीटली लक अकड़ पकड़ बम्बे वो तो नहीं। नहीं करना चाहिए। आई टेल यू, इफ यू गेट एन एब्सोल्यूट जीरो ना, तब भी तुम्हारी 15-20 परसेंटाइल होती है कैट में। तुमने सारा का सारा क्वेश्चन पेपर छोड़ दिया तो ट्रस्ट मी, लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग नेगेटिव मार्क्स जो अकड़ पकड़ बम्बे वो कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि तुम कम्प्लीटली खाली छोड़ दो, तुम्हारे फिर पॉजिटिव अच्छे परसेंटाइल आ जाएंगे। पर अगर नेगेटिव में जाओगे तो वो भी नहीं आएंगे। इनफैक्ट एक बार कैट में हुआ, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट ईयर, जिसमें 50 परसेंटाइल थी उस बंदे की, जिसने तो 0 मार्क्स आए थे, 50 परसेंटाइल। सो डोंट डू दैट अकड़ पकड़ थिंग, ट्राई एंड रिवर्स इंजीनियर द क्वेश्चन। Okay, cool. After talking with you, like I have realized कि कैट देना उतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना कि like लोगों ने हाइप बना रखी है कि कैट कैट कैट। एब्सोल्युटली। Cool. Okay, so like अब आते हैं जब आपका रिजल्ट आ गया एंड आपके इंटरव्यूज के लिए लाइक कॉल्स आने शुरू हुए। सो उसके बाद आपकी लाइक किस तरह की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी एंड लाइक वहाँ पे क्या क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का एंड किस तरह से बच्चे रिजेक्ट होते हैं वहाँ पे? राइट। तो पता है फर्स्ट ऑफ ऑल एक ना मिसकंसेप्शन होता है लोगों में, मेरे में भी था कि कैट दे दिया, परसेंटाइल आ गई, कॉल्स आ गई, अब तो सेट है। बट एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू। इनफैक्ट कैट क्लियर करने के बाद तो ज़्यादा फाइट शुरू होती है, बिकॉज एनी कॉलेज दैट इज गुड एटलीस्ट कॉल्स 5 to 7 times of the seats they have. So if a college has 100 seats ना, तो 500 या 700 बच्चों को कॉल्स जाएंगी। So your chances of actually making into the college is 20%, less than 20%। तो उसमें भी बहुत फाइट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो तुमसे फॉर्म भरवाएंगे, जब इंटरव्यू की कॉल आएगी उसमें वो कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हर साल हर पार्ट से क्वेश्चंस भी चेंज होते हैं कभी कभी तो। बट कुछ क्वेश्चंस है स्पेसिफिक, जैसे कि योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि तुमने एमबीए क्यों करनी है, वाई एमबीए। इस कुछ कॉलेजेस को वाई एमबीए करके पूछते हैं, कुछ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस करके भी पूछते हैं, राइट। तो वो एक तुम्हारी स्टोरी जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम आके उनको ये कह रहे हो कि मुझे तो पैसे कमाने हैं, आईएम से अच्छे पैसे मिल जाएंगे, तो मेरा एमबीए करने का यही मोटिवेशन है, तो मुझे जाके कह नहीं सकते उनको। जबकि उनको भी पता है ट्रूथ द रियलिटी ऑफ दैट शिट। बट आई थिंक somewhere ना going to a coaching institute which has people doing this for an era. I was with Hit Bullseye Chandigarh, and I tell you that I have one of the best mentors in Rajiv Markande sir. He was very good. तो मेरी सारी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वगैरह मैं उसे रिव्यू करवाती थी कुछ भी लिखने से पहले। इनफैक्ट अगर वो उनसे ये पूछ रहे हैं कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, इट्स हाउ आई प्रेजेंट थिंग्स यार। जो हम लोग एमबीए क्लियर करते हैं ना, उसमें ये नहीं है कि हमें कुछ बहुत स्पेशल आता है तो तुम्हें नहीं आता है। पर अगर हम लोग ये भी लिखेंगे ना कि हम नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखते हैं, तो वो भी इतना फैंसी तरीके से लिखेंगे ना, उस प्रेजेंट करेंगे कि वो कोई अचीवमेंट लगेगी, ठीक है। सो हाउ यू प्रेजेंट थिंग्स मैटर्स इन इंटरव्यूज। तो आई थिंक अगर तुमने कैट तक भी कोचिंग नहीं ली, आई एम नॉट गोइंग टू कम हियर एंड से कि तुम हिट बुल ऐसे कोचिंग लो या यहाँ से लो या वहाँ से लो। कैट तक तुम चाहे सेल्फ स्टडी भी कर लो, बट आफ्टर यू क्रैक कैट ना,
तब तुम्हें कोई चाहिए होता है, तुम्हें पर्सनैलिटी ग्रूम करके तुम्हें वो रियलिटी चेक दे सके कि तुम्हें प्रेजेंट कैसे करना है खुद को और अपनी सीवी को टुवर्ड्स द इंटरव्यूज, बिकॉज वहां पे भी इंटरव्यूज हैव नो गारंटी ऑफ कि तुम क्लियर कर ही जाओगे. आई नो पीपल 99.9%, 99.9% IIT का बच्चा, उसकी सारी बाकी सी कॉल थी ए से लेके मुंबई तक, एक भी कन्वर्ट नहीं हुई. क्यों? क्योंकि उसे जब भी कोई पूछता था कि वाई MBA, ही डिड नॉट हैव एन आंसर एट ऑल. उसको मॉक इंटरव्यूज नहीं दिए थे, उसने उसको आइडिया ही नहीं था कि क्या होने वाला है उसके साथ, व्हाट कम्स एंड हिट्स हिम. ठीक है, तो दे डोंट वांट अ कंप्लीट नर्ड पर्सन, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, वो इंटरव्यूज क्यों ले रहे हैं? 3 चीजें चेक करने के लिए. पहली चीज कि हर ब्रांड, हर कॉलेज को चाहिए होता है कि जो ये बच्चा आ रहा है अपने प्लेस करवा सके जब प्लेसमेंट्स हो, राइट? तो वो आपकी पर्सनैलिटी स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स को जज कर ही रहे हैं, पर आपका मोटिवेशन भी जज कर रहे हैं. दे डोंट वांट पीपल जिनका सेकंड या बैकअप ऑप्शन रहा है MBA. फॉर एग्जाम्पल कई UPSC के बच्चे रहते हैं, तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि और कुछ नहीं हो रहा लाइफ में तो आप रिजेक्ट होके आ रहे हो. यू शुड बी मोटिवेटेड टू डू एन MBA. यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई कि तुम स्किल सेट्स क्या लेके आ रहे हो जो MBA में तुम्हारी हेल्प करेंगी, और ऐसे तुम्हें क्या लगता है स्किल सेट्स मिसिंग है जो तुम्हें MBA दे के तुम्हें बेटर इंडिविजुअल बना सकता है फॉर कॉर्पोरेट. दैट इज द थिंग. और फर्स्ट ऑफ ऑल ना, जितने मर्जी तुम इंटरव्यूज दे लो, a lot of things happen in the interviews that are completely beyond your control. Because sometimes ना इंटरव्यूअर जो है वो फालतू को खुंदस खा के बैठे, तुम क्या कर लोगे? So I went into this interview called IIM Lucknow, and this guy, he started asking me questions कि preamble में क्या लिखा कॉन्स्टिट्यूशन के. And why? Because मेरे सीनियर मैंने मेंशन किया था कि मैं डिबेटिंग करती हूँ. So he's like, okay, you do debating, बताओ preamble में क्या लिखा है. मतलब इसका क्या लॉजिक बना कि मैं डिबेटिंग करती हूँ तो मुझे पता होगा preamble में क्या लिखा है, but whatever. तो मेरे साथ बताना शुरू किया कि इंडियन सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सॉवरन. इज लाइक नो 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 नो, एग्जैक्टली क्या लिखा है वर्ड टू वर्ड, कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है. और डू यू थिंक कोई किसी को पता होगा एग्जैक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ब्ला 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 ब्ला? नो, राइट? सो आई टोल्ड हिम कि सर आई एम नॉट श्योर, आई विल गो बैक एंड लुक इनटू इट, सॉरी. ही इज लाइक, अभी से सॉरी? अभी तो बहुत सारे सॉरी आएंगे. तो मुझे समझ आ गया था कि भाई कुछ तो है, या तो मजे लेने के मूड में है. तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इस इंटरव्यू पे मूड पे भी डिपेंड करता है, एंड दे ट्राई टू मेक यू नर्वस एज वेल. तो तुम्हें वो चीज़ ना तुम तब वॉच कर पाओगे जब तुमने वो पहले सिचुएशन फेस कर रखी है. हम लोग अभी तक कॉलेज एनवायरनमेंट में रहेंगे, और यूजुअली क्या होता है, हमारे साथ कोई बदतमीजी करता नहीं है कोई भी प्रोफेसर फालतू में, राइट? ना तुम उस स्ट्रेस एनवायरनमेंट में होते हो जहाँ पे तुम्हें स्टेक्स बहुत हाई हो, राइट? सो दैट्स ट्राइंग टू क्रिएट अ प्रेशर. तो मॉक इंटरव्यूज देना बहुत जरूरी है. इनफैक्ट वो लॉट ऑफ GK भी पूछते हैं. तो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज, आई यूज्ड टू रीड अ लॉट अबाउट बजट जो आया था हमारा रिसेंटली, वो पढ़ाते थे हमें. एंड essay राइटिंग भी होती है इंटरव्यूज में काफ़ी कॉलेजेस में. तो और essay राइटिंग इज ऑल्सो लक, बिकॉज आज मैं एक टॉपिक दे रही हूँ विच इज ब्लैंड नॉर्मल सा टॉपिक की, विल यू चूज वेल्थ और विल यू चूज हैप्पीनेस. ठीक है, इसमें कोई भी लिख सकता है. कल मैं तुम्हें टॉपिक दे रही हूँ कि बिटकॉइन पे लिखो. अगर तुम कोई टेक सेवी पर्सन नहीं हो जो बिटकॉइन या ब्लॉकचेन्स को फॉलो करते, तुम कैसे लिखोगे इस पे? नहीं लिख पाओगे ना. और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें 4-5 ऑप्शन दे रहे हैं कि कोई एक चूज कर लो. तुम्हारे दिन पर जो SEO टॉपिक डिसाइड किया है ना उन्होंने, तुम्हें उसी पे लिखना है. ओके, राइट? सो इंटरव्यू के लिए बहुत प्रिपरेशन लगती है, आपको बहुत सी ऐसी राइटिंग करनी पड़ती है, डिफरेंट टॉपिक्स पे करनी पड़ती है. GK का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. वो तुम्हारे बैचलर्स में तुमने जो पढ़ा है वो भी पूछ सकते हैं मुझसे. कई इंटरव्यूज में कोडिंग भी करवाई है उन्होंने, पेन पेपर देके कि कोडिंग करो. तुम मुझसे लॉग्स के वो भी बनवाए ग्राफ कि ये इक्वेशन है, इसे ग्राफ बनाओ. तो द इंटरव्यू कैन रेंज फ्रॉम एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन, इंक्लूडिंग द सन. ठीक है, एंड दे कैन ट्राई टू पेस्टर यू एज वेल. पता है मेरे पे कुछ सेक्सिस्ट स्टेटमेंट्स भी थ्रो हुई हैं कि ओके यू आर अ गर्ल, तो हाउ वुड यू मैनेज योर कैरियर एंड योर किड्स, यू नो, स्टफ लाइक दैट, टू जस्ट make you come under the pressure as well. So that is something that requires intense preparation to deal with it. And let me tell you, तुम जितना मर्जी मॉक इंटरव्यूज दे लो, तुम जितनी प्रिपेयर करके जाओगे ना, उसका 1/10 ही परफॉर्म कर पाओगे. क्योंकि रियल इंटरव्यू में ज़्यादा स्ट्रेस होता है, स्पेशली अगर जैसे मैं बैंगलोर का इंटरव्यू था और दैट वाज माई बेस्ट कॉल. तो मैंने अपने ऊपर इतना प्रेशर ले लिया कि मेरा बेस्ट इंटरव्यू कॉल है, मुझे तो कन्वर्ट करना ही करना है, कि तुम प्रेशर में खुद की ही जो परफॉर्मेंस है डाउन कर लोगे. और वो रियलिस्टिकली होता ही है. तुम कैट में भी जितने मॉक्स दे दो, जितने बड़ी दे दो, तुम लोग कभी भी वो प्रेशर रिक्रिएट नहीं कर पाओगे जो एक्चुअल वहां पे तुम्हें अंदर बैठ के होगा, राइट? सो दैट इज द थिंग कि इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि
7 टाइम्स द बच्चे जो अवेलेबल हैं सीट्स हैव बीन फॉल्ड. So उसमें भी your chances of making it are very low. So maximize your chances by giving every single interview call that you have. मेरे पास अहमदाबाद और कैलकाटा छोड़ के सारी कॉल्स थी एंड मैंने एक भी कॉल मिस नहीं किया. इवन जम्मू अमृतसर जो कैब कॉल्स है वो भी मिस नहीं किए. मत करो, बिकॉज यू हैव यू तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है ना वो चीज़. तो वो इंटरव्यू ये का मूड कैसा है, ठीक है, वो फालतू में पुलिस पे खा के बैठा तुम क्या कर लोगे, करेक्ट. राइट? तुम कुछ क्वेश्चन से कोई आंसर नहीं होते हैं. मुझसे पूछ रहे हैं, जैसे आई नो समवन जिससे पूछा गया कि लाइक यूएस में कितनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड हाउ आर यू सपोज टू नो दैट, राइट? एंड देयर वाज दिस वन गाय जिससे पूछा है कि मेरे लिए इतनी चॉकलेट क्यों है, ठीक है? तो some things can go completely awry when it comes to interviews. So interviews require intense preparation as well. And to be frank, मैंने बहुत इंटरव्यूज दिए हैं एंड थैंक्स टू इट जो जिन लोगों के अच्छे कॉल्स होते हैं उनके मल्टीपल इंटरव्यूज लिए जाते हैं. एक वर्कशॉप भी होती है लाइक, और वो 12 घंटे चलती है नॉन स्टॉप वर्कशॉप, स्पेशली इंटरव्यू कॉल्स इनकी होती हैं. तो वी आर प्रिपेयर्ड रियली रियली गुड फॉर इट. और हमारे मॉक इंटरव्यूज रिकॉर्डेड होते हैं, तो हमें जो मॉक इंटरव्यूज रिकॉर्ड करके वो रिकॉर्डिंग दे देते हैं. तो यू सी फॉर योर सेल्फ कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, तुम्हारी टोनैलिटी कैसी है. और तुम नोटिस करोगे कि जब तुम्हें क्वेश्चन आते होते हैं ना, तो तुम्हारी वॉल्यूम भी अप हो जाती है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी कॉन्फिडेंट हो जाती है. तुम्हें क्वेश्चन नहीं आते होते, वॉल्यूम भी डाउन चली जाती है, तुम्हारे शोल्डर्स भी ड्रॉप करने लगते हैं. तो व्हेन यू रिव्यू योर फुटेज ना, तुम सबकॉन्शियसली तुम्हें पता चलता है कि तुमने क्या कर दिया. नहीं, तुम फिर भी स्ट्रेस तो फील करोगे फाइनल इंटरव्यूज में, पर तुम्हें ना पहले से पता होगा कि तुम्हारी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है जब तुम नर्वस होते हो. तुम कॉन्शियसली अपनी बॉडी को रोक सकते हो वैसा बिहेव करने से फाइनल इंटरव्यूज में. ओके, सो ऐश्वर्या, लाइक आपने अभी तक ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया. लाइक you have covered almost everything about CAT and like interview. So like अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मेंटरशिप की बात करते हैं. लाइक अगर कि कई बच्चे ढूंढते हैं कि किस तरह से लाइक किस टाइप के टीचर से उन्हें पढ़ना चाहिए, लाइक वेदर ऑफलाइन ऑनलाइन वगैरह. सो इस बारे में कुछ बता सकते हो आप, लाइक व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? So first of all, personally, I'm not a big fan of YouTubers because a lot of them, they will overcomplicate things just to seem like demigods. कि हमने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया and they'll complicate things for you. So my personal advice is कि एक mentor ढूंढो which you think works for you, which makes sense for you, which clicks with you. It does not necessarily have to be me as well, but उससे भी stick करो, क्योंकि हर एक की एडवाइस समटाइम्स इवन कॉन्ट्रडिक्टरी भी होती है और कोई सही या रॉन्ग तरीका नहीं है. व्हाट स्ट्रैटेजी वर्क्स फॉर यू, ठीक है? तो आई वांट यू गाइस टू चूज वन मेंटर एंड स्टिक टू दैट वन मेंटर. एंड इट्स बेटर इफ इट्स ऑफलाइन मेंटर. पर्सनली आई थिंक सो, बिकॉज मेरे कोचिंग में आई हैड राजीव सर हु वाज ही इज अ मेंटर विद हिटबुल्सआई. तो आई यूज्ड टू गो एंड बाज इनटू हिज cabin whenever I used to have an issue, and he was very helpful personally. Although I'm not paid to tell about हिटबुल्सआई, कोई कमीशन वगैरह नहीं है मेरा. I'm just telling it from my personal experience. और मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, हिटबुल्सआई जाऊँ या CL जाऊँ या टाइम्स जाऊँ और कौन से मॉक्स लूँ. तो पर्सनली आई विल टेल यू 19-20 का फर्क है. और किसी भी बॉक्स उठा लो, तुम जो मर्जी उठा लो, आई पॉन्टा भी उठा लो, हिटबुल्सआई भी उठा लो, तुम कोई भी उठा लो, कोई खास फर्क नहीं है. 90% ऑफ इट इज़ योर rigor and your hard work. Personally, I would say so. तो कोई भी उठा लो, it's fine. हिटबुल्सआई मैंने पर्सनली ट्राई किया है, तो चंडीगढ़ पटियाला में हमारे ब्रांचेस हैं, तो आई कैन वाउच फॉर देम. एंड आई ऑल्सो डिड गिव अ फ्यू CL के मॉक्स, तो दे आर ऑल्सो वेरी गुड. हिटबुल्सआई के मॉक्स आर ऑल्सो वेरी अपडेटेड. टाइम्स के मैंने मॉक्स लिए थे, बट पर्सनली आई थिंक उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड बना रखे हैं. कैट में क्या होता है, कुछ ईजी क्वेश्चन होते हैं, कुछ मीडियम, कुछ हार्ड. टाइम्स के सारे मॉक्स के सारे क्वेश्चन ही ऑलमोस्ट हार्ड होते हैं, बिकॉज वो ज़्यादा हार्ड कर देते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को, ताकि वो ज़्यादा अच्छे परसेंटाइज निकाल सके. बट इफ यू एन एवरेज किड ना लाइक मी, तो तुम डिप्रेस ही हो जाओगे बस मॉक्स देने के बाद. तो आई वॉज कम्प्लीटली डिप्रेस कि मेरे परसेंटाइल आ ही नहीं रहे टाइम्स के मॉक्स में. तो टाइम्स के मॉक्स में भी कैटेगरीज होती हैं, तो टेक द एवरेज वन. मैंने बहुत ऊपर सुपीरियर वाला पैक उठा लिया था, वो करने की जरूरत नहीं है. बाकी टाइम्स के मॉक्स भी ठीक है, CL की भी ठीक है, हिटबुल्सआई की भी ठीक है. तुम जौन से भी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, उनके मॉक्स यूजुअली अपडेटेड होते हैं. तुम जो तुम्हें बेटर लगता है कोचिंग, तुम जहाँ पे जाओ एक मॉक डेमो क्लास लो, जो तुम्हें फिट लगता है वो वहाँ पे जाकर ज्वाइन करो. बस ये ध्यान रखना कि ये देखना कि वो डाउट सेशन कैसे मैनेज करते हैं. जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं
यूजुअली क्या होता है वहाँ पे पर्सनलाइज अटेंशन नहीं मिल पाती, ना डाउट सेशन इतने आराम से टीचर्स ले पाते हैं, वो बैच साइज बहुत बड़ा है ना। तो इट वो मुझे एडवांटेज था कि पर्सनलाइज अटेंशन थी। इनफैक्ट हर क्लास शुरू होने से पहले ना टीचर यूज टू गो टू दैट किड पर्सनली और उसके फ़ोन पे चेक करते थे कि उसने होमवर्क किया कि नहीं, क्योंकि हमारा होमवर्क ऑनलाइन आता था और हमें ऑनलाइन सबमिट करना होता था। तो एक-एक बच्चे पे बहुत ज़्यादा पर्सनल अटेंशन थी। तो व्हिच इज़ समथिंग आई लाइक्ड अबाउट दैट इंस्टीट्यूट बिफोर जॉइनिंग इट, सो आई यूज्ड टू गो फॉर दैट। और कैट तो फिर भी आई थिंक तुम सेल्फ स्टडी से भी ले सकते हो। ऑल्दो आई डोंट रिकमेंड इट, क्योंकि पर्सनली मुझे लगता है कि व्हेन यू आर इन द क्लास एनवायरनमेंट ना, तो देखो तुम्हें एक वो एनवायरनमेंट मिलता है जिससे तुम्हें पुश मिलती है पढ़ने की, और तुम्हें एक रियलाइजेशन होती है कि लोग कितना कर रहे हैं साथ में। You will always have a person outperforming you. So you will have that healthy competition to look up to. तो पर्सनली मेरे लिए हमेशा ऑफलाइन कोचिंग ही वर्क की है। बट समटाइम्स अगर तुम दिल्ली में रह रहे हो तो तुम्हारे साथ ट्रैवल टाइम इतना ज़्यादा हो जाएगा कि तुम ट्रैवल नहीं कर पाओगे, तो ऑनलाइन इज़ अ गुड ऑप्शन। दैट इज समथिंग यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि तुम्हारे लिए क्या काम करता है। थोड़ा सा होता है कि पर्सनल टच ऑनलाइन में मुझे लगता है कम हो जाती है। सो यू कैन गो फॉर एनी ऑफ दीज, बट एज लॉन्ग एज यू आर नॉट रेडी टू वर्क फॉर इट, तुम अपना होमवर्क नहीं कर रहे हो, तुम अपने नोट्स नहीं दे रहे हो, नथिंग इज गोइंग टू वर्क। ठीक है, तो इस इतना सोचने के अलावा कि मैं कौन से मॉक्स दूँ, कौन सा कोचिंग ज्वाइन करूँ, तुम इस पे ध्यान दो कि ये मॉक लेने के बाद या कोचिंग देने के बाद मैं उसको कंप्लीटली करूँ। ये नहीं होना चाहिए तुम नेक्स्ट क्लास अटेंड करने जा रहे हो, लास्ट क्लास तुमने होमवर्क नहीं किया हुआ, दैट्स नॉट वर्थ इट। दैट्स द थिंग। सो डोंट फ्रेट टू मच अबाउट कौन सा मॉक या कौन सी कोचिंग। टॉप की सारी 5-7 कोचिंग आर इक्वली एज गुड। सो व्हाटएवर फिट्स इन योर बजट एंड इज मोर practical for you, you go for that. And just stick to one of those still. Don't go hopping around कि आज इसका कर लिया, कल उसका कर लिया। एक चीज़ को पकड़ो, एक चीज़ को जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें पसंद है, जो मेंटर पसंद है, जो कोचिंग पसंद है, उसमें जाओ, stick to it. That's the thing. Okay, nice. My last question to you, like, what do you want to do in life? That's a heavy one. ये ऐसा MBA interview में पूछते हैं what is your 10-year or 15-year goal? So personally, I think somewhere now I want to feel like कि my skill set is being utilized properly as well. क्योंकि and I want to be in a place where I'm able to give as well as be appreciated and seen. Right? So I do believe somewhere my skill set does align with an MBA and I can be an asset for any company. So I like to take it one step at a time. अभी मैंने स्पेशलाइजेशन नहीं सोची है जैसे. So I like to contribute as well as grow professionally. And of which bucket list में items सबके होते ही हैं. I want to trek to the base camp of Mount Everest, learn French, stuff like that. So, and I want to be kind of like satisfied with my job. I think Instagram पे we like to shit on 9 to 5 job, right? कि ये तो तुमने जिंदगी खराब कर ली, it's a rat race, it's completely bad. It's not true. That's not true. It's not as bad. इतनी बुरी होती तो लाख लोग नहीं कर रहे होते ना. Let's not make people feel bad or guilty about their choice of going to incorporate, right? Not all of us come from business families. Not all of us come from environments who can financially contribute to starting a business. We come from middle class background. Sometimes अगर हमारा business fail हुआ तो हम सड़क पे आ जाएंगे, है ना? तो हम लोग हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता कि डायरेक्टली बिजनेस में जाए, राइट? लॉट ऑफ पीपल से कि तुम 30 लाख MBA में लगा लो, 30 लाख का बिजनेस शुरू कर लो, बट MBA इन शॉर्ट कि तुम खाने पीने जोगे तो हो ही जाओगे ना, बट बिजनेस फेल होगा, तुम सड़क पे हो, तुमने सब कुछ बेच दिया अपना उस लोन पे और तुम्हें रिटर्न नहीं मिला. सो लेट्स नॉट बैड माउथ समथिंग दैट गिव्स यू लाइवलीहुड, जो तुम्हारे फैमिली को पालती है और तुम्हें अपनी छोटी छोटी खुशियाँ जो भी हैं तुम अफोर्ड जो कर सकते हो उसको, लेट्स नॉट बैड माउथ दैट, राइट? So my aspiration first of all is to be contributing enough to corporate, and maybe someday if luck permits and my skill set permits, maybe I'll venture into an entrepreneurship as well. Okay, great. Okay, so Aishwarya, like we have talked a lot about like everything, and like जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी, like आपकी प्रिपरेशन, like आपकी like the way of talking में झलकती है पूरी कि like आपने कितनी मेहनत की है and कितना वर्क किया है खुद पे. So that's a great thing. Okay, and now yeah, welcome. Okay, and now like we are about to conclude the session. So at last, like I want to say to my audience, like if anyone wants to connect with Aishwarya for some guidance and any kind of mentorship, so you can connect with her like on LinkedIn. Okay, so
at last, I want to say like, I'll just leave you with a thought that I've failed more times than I've ever succeeded. मेरा KVPY नहीं हुआ, मेरा IIT clear नहीं हुआ, मुझे fan नहीं मिली. But let me tell you something that is completely true for everyone. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to stand up and continue that counts. cool. And at last, like to my audience, कि अगर आप वो इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है, so you can subscribe and share our channel, and you can suggest कि like हम आगे किस तरह के पॉडकास्ट लाएं and किस तरह के लोगों से interact करें. So at last, thank you everyone. Bye bye and enjoy.